Welcome to Rashnagots. Today we are starting simple linear equations of concise mathematics class 7. Before starting the chapter, we will see some rules for transposition. Now if I mark an equals to sign here and place my hands on the both sides of this equals to mark like this, then this, my left hand, is known as left hand side and my right hand is known as right hand side. Okay. So rules for transpositions are, if we transpose a term that is a positive term from left side to right side, it converts its sign to negative. If we convert or transpose a negative term from left to right, it takes positive sign. If a term with sign of division transposes to right side, becomes multiplication, and sign of multiplication becomes division. Easy rules है, left to right और right to left, vice versa चलता है. यहाँ से यहाँ करें या यहाँ से यहाँ करें. Plus changes to minus, minus changes to plus. Multiplication changes to division, division changes to multiplication. Now we will start exercise 12A. Question number 1 is find the value of unknown variable. Okay. First is x plus 5 is equal to 10. This is a variable here. These numbers are constants. Numbers को constant बोलते हैं and alphabets are known as variable. Now we have to transpose this 5 from left hand side to right hand side. So x is equals to 10 plus 5 will convert to minus 5. Okay. And 10 minus 5 is 5. So x is equals to 5 is our answer. Similarly next, here 2 plus y is equals to 7. So y is equals to, left hand side में variable रखते हैं, right में number solve कर रहे हैं. 7 and this 2 will transpose from left side to right side. 2 is positive 2, so here it becomes negative. 7 minus 2, which is again 5. This is our answer. Next, a minus 2 is equals to 6. So a is equals to 6. Minus 2 will transpose and become positive 2. So 6 plus 2 is 8. 8 is our answer. Now moving to fourth question. Fourth question is x minus 5 is equals to 8. So x is equals to 8. Minus 5 will transpose from left side to right side. Minus converts to plus. So 8 plus 5. 13. 13 is the answer. Next we have question number 5, which is 5 minus d is equals to 12. Now 5 minus d. d is variable here. तो d को नहीं रखते हैं. Is equals to 12. 5 positive है. Transpose होके negative. So minus d is equals to 12 minus 5 is 7. Variable हमेशा positive करते हैं आंसर निकालने में. So d is equals to p minus 7. इधर आ जाएगा minus. Minus sign इधर आ जाएगा बस. ठीक है. d is equals to negative 7. ये ध्यान रखना है. Variable negative नहीं करना है आंसर देने में. Now question number 6 is 3p is equals to 12. So 3 and p. इनका रिलेशन क्या है आपस में? से मैं देती हूँ 3 multiplied by p है is equals to 12. So p is equals to 12. मल्टीप्लिकेशन में है तो कन्वर्ट होकर आ जाएगा डिवीजन में. 12 divided by 3 and 12 divided by 3 is 4, which is our answer. Moving on to question number 7. Question number 7 is 14 is equals to 7m. Now we have to find the value of m. So m is equals to 14. 7 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा डिवीजन में. m is equals to 2. Question number 8. 2x is equals to 0. 2 multiplied by x. 2 x का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है. x is equals to 0 upon 2. अगर कोई साइन नहीं है नंबर्स के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है. तो 0 upon 2 is 0. Question number 9. x upon 9 is equals to 2. यहाँ x upon 9 means x divided by 9. ठीक है.
एक्स के साथ रिलेशन क्या है लाइन का, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला कन्वर्ट होके मल्टीप्लाई हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, सो x इज इक्वल्स टू 18। डायरेक्ट भी हमने पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज y डिवाइडेड बाय, रीड ही करेंगे ना क्वेश्चन, रीड करने में हमें साइन पता चल जाएगा क्या रिलेशन है। इट इज y डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड मींस ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई, सो y माइनस 4 यहाँ ऐसी एज इट इज राइट हैंड साइड, माइनस 12 डिवाइड में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाइड, तो माइनस 4 इंटू माइनस 12 विल बी पॉजिटिव 48। नेक्स्ट इज 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 38, तो 8x अभी एज इट इज लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इज इक्वल्स टू 38 नेगेटिव 2 ट्रांसपोज होके पॉजिटिव 2, सो 8x इज इक्वल्स टू 40, देन x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा अपॉन 8 दैट इज 5। दिस इज अवर आंसर। दो इसमें हमने रूल यूज किए हैं, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है और एक डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट अगेन दो वाला ही है, 2x इज इक्वल्स टू, पहले x के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो हटाते हैं, फिर उसके साथ वाला नंबर्स को कोएफिशिएंट हटाएंगे। 5 माइनस ये पॉजिटिव 5 यहाँ के नेगेटिव 5, सो 2x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज अगेन 0। Next is question number 13. Question number 13 is 5x minus 1 is equals to 74. Now 5x minus 1 क्या होगा सबसे पहले, 5x is equals to 74, माइनस 1 बोल रहे हैं तो ट्रांसपोज होके माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, so 5x is equals to 75 and x is equals to 75 upon 5, 5 one time 5 times, 15 is our answer. Question number 14. It is 14 is equals to 27 minus x. Again x नेगेटिव है, हम क्या कर सकते हैं, हमें दो चॉइस है, या तो हम x को राइट हैंड साइड पे रहने दें या फिर हम इसे लेफ्ट पे ले जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा यूज करते हैं, लेफ्ट पे ले जा देते हैं। अगर माइनस है तो लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी नंबर वेरिएबल ट्रांसपोज होता है साइन चेंज होता है, तो नेगेटिव x विल बी पॉजिटिव x यहाँ आके इज इक्वल्स टू 27 राइट हैंड साइड एज इट इज, एंड 14 ट्रांसपोज हो जाएगा नेगेटिव 14। क्या किया है हमने, 14 को हम राइट हैंड साइड ले गए हैं और x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं, ठीक है, दोनों एक साथ कर दिया एक स्टेप में। सो x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 14 इज 13। नेक्स्ट इज 15th व्हिच इज 10 plus 6a is equals to 40. Again, इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, इसमें वेरिएबल हमारे पास है a. So a वाली जब में लिखते हैं 6a is equals to 40 plus 10 है minus 10 हो गया, 6a is equals to 40 minus 10 is 30। अब a हटाते हैं, a is equals to 30, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, आंसर इज 5। नेक्स्ट एक और करते हैं यहीं पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। c माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3। मैथड क्वेश्चन करने का क्या है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक स्टेप के नीचे दूसरा स्टेप करते जाते हैं, कोशिश करते हैं एक लाइन में दो इक्वल्स ना आए, ठीक है। तो स्पेस इशू होता है इसलिए मैंने डायरेक्ट रखते हैं, अदरवाइज ये वाला 0 भी नेक्स्ट टाइम में आएगा, ये वाला 5 भी नेक्स्ट टाइम में आएगा। Now c minus 1/2 is equals to 1/3. तो ये और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, this implies c is equals to minus 1/3 के पास चला जाएगा पॉजिटिव 1/2 एंड साइन यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ जाके पॉजिटिव। Now 1/3 1/2 डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम दोनों का आएगा, तो ये 2 का 6, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, so c is equals to 5/6. This is our answer. Next is question number 17, which is a upon 15 minus 2 is equals to 0. कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसमें हमारे पास, अगर टर्म्स की बात करें तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, बट सिंस 15 भी एक नंबर है तो इस नंबर को भी हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा टू इट्स राइट साइड। नाउ a upon 15
is equals to 0, negative 2 will become positive 2. So a upon 15 is equals to 2. A is equals to 2 multiplied by 15, ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई होता है एंड 30. ये हमारा आंसर है. सिंपल रूल्स याद रखने हैं. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन. नाउ 12 is equals to c minus 2. So 12 is equals to, ये लाते हैं c, नेगेटिव 2 है, ट्रांसपोज होके नंबर नंबर के पास जाएगा, नेगेटिव 2 will become positive 2. So c is equals to 12 plus 2 is 14. ये भी लिख सकते हैं, और we can write it as 14 is equals to c. ठीक है, बट करेक्ट हमारा स्टेटमेंट c की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वाली होगी. नेक्स्ट इज 4 is equals to x minus 2.5. क्या करेंगे अगेन, 4 minus 2.5 ट्रांसपोज होके बन जाएगा प्लस 2.5 is equals to x चल रहा है. So x is equals to, डेसिमल एडिशन आना चाहिए. डेसिमल बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं. डेसिमल पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना पड़ता है. 4 प्लस 2.5 तो 4.0 मानना पड़ेगा, और 2.5 के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना पड़ेगा. ठीक है, ये वाला एडिशन. तो इट इज 6.5. दिस इज अवर आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज y plus 5 is equals to 8 whole 1 by 4. This is question number 20. Okay. Now y plus 5. Y is variable, so y को ऐसे लिखते हैं. 8 1 by 4. सॉल्व को कितना हो जाएगा, 4 multiplied by 8, 32 plus 1 33, 33 by 4. Now positive 5 ट्रांसपोज होके नेगेटिव 5 बन जाएगा. डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं. 4 and 1 का 4 आएगा, 33 as it is, minus 5 into 4 is 20. आई होप एलसीएम लेना आता हो सबको. नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, जैसे भी होगा आगे करके ट्राई करके देखेंगे. सो y is equals to 13 minus 20 is 13 upon 4. तो क्वेश्चन में मिक्स है, आंसर भी मिक्स फॉर्म कर देते हैं. 4 3 times 12 and 1. 3 whole 1 by 4 is our answer. Moving on to question number 21. 21 में हमें बोला है x plus 1 by 4 is equals to minus 3 by 8. दोनों फ्रैक्शन रहेंगे. So x is equals to minus 3 by 8 plus 1 by 4 है, minus 1 by 4 हो जाएगा. Now 8 and 4 का LCM 8 आता है. minus 3 as it is, माइनस का ध्यान रखना है, इसका माइनस है, इसलिए माइनस है, ये भी माइनस है, इसलिए माइनस है. Now 4 into 2 is 8, तो यहाँ पे आ गया 2. So answer is minus 5 by 8. Integers को ऐड करना आना चाहिए. Next is question number 22, which is p plus 0.02 is equals to 0.08. p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. p is equals to 0.08. पॉजिटिव नंबर ट्रांसपोज होकर बन जाएगा नेगेटिव 0.02. माइनस करते हैं 0.06. दिस इज आवर आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. p minus 12 is equals to 2 whole 2 by 3. सोल्यूशन करते हैं. p minus 12 as it is equals to, कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 into 2 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 by 3. ठीक है, सबसे पहले क्या करा, सिंप्लीफाई करके दिखाया बस. नाउ p is equals to 8 by 3, नेगेटिव 12 ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव 12 हो जाएगा. अगर कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना है. नाउ 3 and 12 का एलसीएम विल बी 3 only. 8 plus 12 into 3 is 36. 36 plus 8 is 44 upon 3. So p की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, 1 time 3, 14, 3 4 times 12 and 2 remaining, 14 whole 2 by 3. This is our answer. ठीक है, आई होप ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबको आता होगा. फोर्थ क्लास में सीखते हैं, नहीं आता है तो प्रॉपर डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24. एक बार बता देते हैं, ठीक है, इनकेस नहीं आ रहा है तो एक सीख लेते हैं. 44
डिवाइडेड बाय 3, 3 1 टाइम 3, 1 रिमेनिंग, नेक्स्ट 4 आ जाएगा, 3 4 टाइम्स 12, 2 रिमेनिंग, ठीक है। ऐसे होता है। अब लिखना कैसे होता है, एंटी क्लॉक घुमाना है, 14 3 की प्लेस में शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज से ऐसे उल्टा घुमा देना है, और ये ऊपर जा रहा है। क्या करा, 14 आ गया डिवीजन की जगह, 3 आ गया रिमाइंडर की जगह, एंड 2 चला गया क्वेश्चन की जगह। क्वेश्चन डिवीजन और रिमाइंडर पता हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं। दिस इज नोन एज क्वेश्चन, क्यू से मार्क कर रही हूँ, ये डिवाइजर या डिविजर है, डी से मार्क कर रही हूँ, एंड इट इज रिमाइंडर, आर से मार्क कर रही हूँ। लिखने का मेथड होता है क्वेश्चन आर बाय डी, ठीक है, क्यू आर बाय डी, या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी इजी लगे। Now moving on to next question, which is question number 24. Minus 3x is equals to 15. क्या करना है, माइनस 3 को हटाना है, x is equals to 15, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा अपॉन माइनस 3, x is equals to minus 5, 3 1 टाइम 3, 5 टाइम्स। नेक्स्ट 1.3b is equals to 39. So b is equals to 39, डिवीजन में आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है 1.3। Now 39 अपॉन 1.3, डेसिमल से रिमूव करा तो मल्टीप्लाई बाय 10, डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाते हैं तो न्यूमरेटर में चला जाता है उसका जीरोस, और न्यूमरेटर से हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में। Now 13 1 टाइम 13, 3 टाइम्स, तो आंसर इज 30। Moving on to next question, which is question number 26. 5 by 8 n is equals to 20. सॉल्व करते हैं। 5 by 8 n के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज n is equals to 20, n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ के डिवीजन हो जाना चाहिए। 5 by 8 डिवीजन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता था, डिवाइड का मल्टीप्लाई नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है, छोटी क्लासेस का ये सारा 8 by 5, 5 1 टाइम 5 4 times. Now 4 into 8 is 32. So this is our answer. Moving on to question number 27. 27 is 3 by 16 m is equals to 21. Again बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मेथड थोड़ा सा करने का मैं दूसरा भी बता देती हूँ। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, m is equals to 21, जो नंबर m के साथ डिनोमिनेटर में है 27 के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, ऐसे क्रॉस हो जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास आता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास। नो 3 1 और 3 7 टाइम्स, 7 into 16 7 6 42, 1 and 1 1 1 2, m की वैल्यू इज 1 1 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, which is 2a minus 3 is equals to 5. Now 2a is equals to 5 plus 3, चलिए ट्रांसपोज किया है, 2a is equals to 8, a is equals to 8 divided by 2, which is 2, 4. This is our answer. Next is question number 9. 3p minus 1 is equals to 8. So 3p is equals to 8 plus 1, नेगेटिव का पॉजिटिव, 3b is equals to 9, e is equals to 9 का डिवीजन में आ जाएगा 3, मल्टीप्लिकेशन का है, आंसर इज 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, 9y minus 7 is equals to 20, माइनस 7 शिफ्ट हो रहा है, तो सिंपल सिंपल लिखते हैं हमें क्या क्या शिफ्ट करना है। तो 9y is equals to 20, नेगेटिव है 7 तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, 9y is equals to 27, y is equals to मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करके 3, 3b minus 14 is equals to 8, तो 2b है, 2b is equals to 8 plus 14, again 2b is equals to 22, b is equals to 22 divided by multiplication में divide 2, which is equals to 11. So B is 11. Next is question number 32. 7 by 10 x, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा है,
प्लस 6 लिख रही हूँ तो माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 41. सो 7 by 10 x is equals to 41 minus 6. 7 by 10 x is equals to minus कर रही हूँ आ रहा है 35. x is equals to 35 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइड हो गया एंड 35 डिवाइड का मल्टीप्लाई नंबर का रेसिप्रोकल 7 one time 7 5 times 5 into 10 is 50. This is our answer. Next is 33. रीड करने में पता चल जाएगा 5 by 12 m मल्टीप्लाई में लिखा है दैट मीन्स डिवाइड में चला जाएगा माइनस 12 लिख रही हूँ मतलब प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 48. जो भी लिख रहे हैं उसका अपोजिट होता जाएगा. तो 5 by 12 m इज इक्वल्स टू 48 प्लस 12. 5 by 12 m is equals to 60. m is equals to 60 denominator numerator multiply और numerator denominator. ठीक है कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये नंबर ऊपर 5 one time 5 12. So m is 12 into 12 which is 144.